Good morning, sir. Good morning, everyone. Is my voice Good clear? morning, sir. Is my voice clear? Yes, sir. Okay, good. Ambuz Yadav, Yes, sir. is there any problem in English? No, sir. Okay. Whatever is being taught, you are able to understand. समझ में आ रहा है जो भी पढ़ाया जा रहा है? Good morning, everyone. Today we will study a beautiful poem written by Harry Bain, and it's this poem is the part of your second chapter. Along with this poem is along with that chapter. Chapter name is How the Dog Found Himself a New Master. We already have studied this chapter. So now we will today study this beautiful poem, The Kite, written by Harry Bain. Harry Bain is student was Harry Bain was a American poet who was born on 24th September 1898 students. So it was a little bit information about him. If you have the book, you can also see the content of the poem in your book. आप book में भी देख सकते हैं. Also have pen and pencil and copy so that you can note down the difficult words, meaning of the difficult words. So students, without wasting our time, without any further ado, let's start today's class. So please see, let's see what through this poem the poet is trying to say. क्या poet कहना चाह रहा है? Many of you must have flown the kites. आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट्स ने फ्लाइट काइट जो है वो फ्लाई किया होगा, उड़ाया होगा. So you must be aware of the experiences of flying the kites. So let's just study through the lines what the poet is trying to say. How bright on the blue is a kite when it's new. How bright, you know, meaning of the bright, shiny. So the poet is trying to say that how bright on the blue. On the blue, students, means sky. यहाँ पे on the blue refers to the sky. So the poet is saying how bright on the blue is a kite when it is new. Poet is trying to say that when a new kites fly in the sky, it looks quite bright. जब भी एक नई जो पतंग होती है वो आकाश में उड़ती है तो बहुत कैसी दिखती है? It looks very shiny, it's very bright. With a dive and deep. Students, let's first see the meaning of dive and deep. Both dive and deep meaning is students no move downwards, नीचे की तरफ जाना. जैसे हिंदी में हम गोता लगाना कहते हैं. Move, you can note it down in your copy. Dive and deep, meaning of the both words is move towards downward. Move downward, नीचे की तरफ जाना. Move downwards. So the poet is saying with a dive and deep. It means students, जब पतंग क्या होती है? इनिशियली जब हम उसे उड़ाने का when we try to fly it, जब हमें उड़ाने की उसको कोशिश करते हैं, so you must have observed, आपने देखा भी होगा, that it again and again comes like आकाश से ऐसे बिल्कुल नीचे की तरफ आती है, जैसे मानो कि कोई गोता लगा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ. So you must have observed this, आपने इसको देखा होगा if you have flown the kites. Kite कई बार और जब हम शुरू में उसे उड़ाते हैं तो बार बार वो नीचे की तरफ गिर जाती है, जमीन पर आ जाती है. So same thing the poet is trying to say students, with dive and deep,
it means that students it seems that it's trying to go downwards. बार बार पतंग क्या करती है, ऐसा मालूम पड़ता है कि वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती है. It snaps its tail. Snaps means students to make a sharp noise. Snaps means to make a sharp noise. यहाँ पे snap का जो मीनिंग है वो है तेजी एक अचानक तेज आवाज करना या साउंड करना. To make a sharp noise. It snaps its tail. Students, the poet is trying to say that as the kites suddenly comes downward with deep and dive, it's make a sudden sound with its tails. आपने देखा होगा like a tail, पतंग में एक जुड़ा रहता है, जैसे वो पतंग का एक पार्ट होता है, जैसे वो बिल्कुल पूंछ की तरह, टेल की तरह दिखता है. So when the kites all of sudden comes downwards, जब भी काइट अचानक ऊपर से नीचे की तरफ आती है, गिरती है, तो इट मेक्स अ शार्प साउंड. उस समय उसमें से क्या आता है कि वो एक शार्प साउंड आता है. Then it soars like a ship with a sail. Now students, after lot of efforts, when the kite starts flying, initially शुरू में आपको ही मालूम है कि after many efforts और when you try to fly a kite initially, शुरू में जब उड़ाने की कोशिश करते हैं, then it again and again comes down. वो बार बार क्या होती है, काइट जो है नीचे की तरफ आ जाती है. After that, the poet is saying that after this, then it soars like a ship. अब एक बार जब उड़ना शुरू हो जाती है तो it fly like a ship. Now the poet is comparing its movement of the fly with ship. शिप से वो क्या कर रहा है, जो पोएट है वो उसकी तुलना कर रहे हैं कि once it starts flying, जब एक बार ये उड़ना शुरू हो जाती है, then it soars. Students, soar means fly. soar का मीनिंग यहाँ पे क्या है, rise, ऊपर उठना, उड़ना. so it soars, यह उड़ती है, like a ship, जैसे कि मानो जैसे समुद्र में जहाज चलती है वैसे ही ये ऊपर उड़ने लगती है. with only a sail, जो शिप होती है स्टूडेंट्स वो सेल के सहारे जैसे चलती है. सेल इज अ शीट ऑफ क्लॉथ. स्टूडेंट्स, सेल का मीनिंग एक कपड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग शीट ऑफ क्लॉथ, एक बहुत मजबूत कपड़ा होता है, विच इज यूज्ड इन बोट्स. नाव में आपने देखा होगा, इफ यू हैव ऑब्जर्व द बोट्स, आप नाव देखे होंगे तो उसके फ्रंट पे एक कपड़ा लगा होता है इन वर्टिकल साइज, वर्टिकल पोजीशन में, which against which the wind blow, students, जिससे हवा उस पर टकराती है और उसी के माध्यम से, उसी के हेल्प से जो होता है नाव क्या होती है, आगे बढ़ती है. so with help of string, एक डोरी के सहारे पतंग क्या होती है, वो आकाश में उड़ती है. और एक जो शिप होती है वो शेल के सहारे, जैसे ही हवा जितनी तेज बहेगी तो उस शेल की मदद से, उस कपड़े की मदद से वो जो नाव होती है वो भी क्या होती है, आगे बढ़ती है. सेम थिंग the poet is comparing, students. Then it soars like a ship. Now the poet is saying that जो फ्लाई है, जो काइट है, वो कैसे फ्लाई करती है, लाइक अ शिप, जैसे शिप मानो सेल के सहारे ओशियन में आगे बढ़ती है, आगे की तरफ जाती है, उसी तरह से एक पतंग भी क्या होती है, हवा में उड़ती है. Now students, let's see. As over tides, tides means, students, tides का जो मीनिंग होता है, tides means a wave of air, you can say, or wave of water. जैसे समुद्र में पानी की लहरें उठती हैं ऊपर नीचे, सिमिलरली हवा का भी झोंका कभी ज्यादा और धीमा होता रहता है. सो इट्स अ वेव ऑफ एयर और वेव ऑफ लहर कह लो आप, हवा की लहर या पानी की लहर. सो नाउ द पोएट इज सेइंग, स्टूडेंट, दैट एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड, जैसे ही हवा की लहरों पे, जैसे ही हवा की लहरों पे जो टाइड क्या होती है, इट बेग पार्डन, काइट क्या होती है, इट राइड्स. जैसे हम साइकिल की सवारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं. नाउ सिमिलरली द पोएट इज सेइंग, स्टूडेंट्स, जब काइट जो होती है हवा की लहरों पे क्या होती है, आकाश में उड़ने लगती है. एज ओवर टाइड्स मीन्स ऑन द वेव्स ऑफ एयर, हवा की लहरों पे, ऑफ विंड, किसकी लहरों पे, हवा के लहरों पे. इट राइड्स मीन्स बेसिकली when we write something. So now the poet is saying that when it rides on the wave of air, जब पतंग उस हवा की लहरों पे उड़ने लगती है, climb to the crest means, students, top of something, किसी का सबसे ऊपरी भाग. crest का मतलब होता है top of something, किसी भी
किसी का भी जो सबसे टॉप पोजीशन होता है, दैट इज द नो क्रेस्ट, टॉप ऑफ समथिंग. सो क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट. गस्ट मीन्स स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग विंड. गस्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा. सो द पोएट इज सेइंग व्हेन द काइट्स क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट, बिल्कुल हवा के जो तेज झोंका होता है उसको ऊपर पहुंच जाती है. कहां पहुंच जाती है? टॉप पे पहुंच जाती है जब क्लाइम. एंड पुल्स, एंड देन ट्राई टू पुल्स मीन्स उससे आगे ऊपर जाने की कोशिश करती है, उससे आगे निकलने की कोशिश करती है. लेट मी अगेन डिस्क्राइब फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स. In the till here we saw that when we try to in the first 1 2 3 4, in the first 4 lines we saw that as we try to fly kites, it's again and again comes down, वो नीचे आ जाती है. Then the poet says that once it starts flying, जैसे एक बार उड़ना शुरू हो जाती है, then it soars means students fly, it soars like a ship. वो किसकी तरह उड़ती है? मानो कि शिप की तरह. जैसे शिप जो होती है सेल की हेल्प से, सेल जो है इसका मीनिंग मैं बता चुका हूं. सेल मीन्स अ स्ट्रॉन्ग शीट ऑफ क्लॉथ स्टूडेंट्स. कपड़ा होता है, जिस कपड़े की मदद से शिप जो है समुद्र में हवा के सहारे आगे तेजी से बढ़ती है. सिमिलरली हवा के सहारे जो है काइट भी है, जो वो किसकी तरह उड़ती है? मान लो किसकी तरह आगे बढ़ती है आकाश में? शिप की तरह. एज ओवर टाइड्स इसका मीनिंग मैं बता चुका हूं. टाइड्स मीन्स वेव ऑफ एयर और वेव ऑफ वाटर, हवा की लहरें या पानी की लहरें. जैसे ही काइट क्या होती है, हवा की लहरें को ऊपर उड़ने लगती है, हवा के लहरों के ऊपर क्या करने लगती है? उड़ने लगती है. इट राइट्स मीन्स राइट्स स्टूडेंट मतलब हवा के ऊपर, यहाँ पे उड़ने से मतलब है स्टूडेंट्स इसका. एंड इससे उड़ते हुए कहां पहुंच जाती है? क्लाइम्स टू द क्रेस्ट. क्रेस्ट का मतलब होता है सबसे ऊपरी हिस्सा, टॉप ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का सबसे ऊपरी हिस्सा. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट. गस्ट मीन्स स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग विंड. गस्ट का मतलब होता है बहुत तेज हवा. सो व्हेन द काइट क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ गस्ट, जो तेज हवा बहती है जब जब काइट होती है उसकी कहां पहुंच जाती है? ऊपर पहुंच जाती है. एंड पुल्स मींस हियर पुल्स मींस स्टूडेंट्स ट्राई टू गो फॉरवर्ड, और आगे जाने क्या करती है? उसको ऊपर जाने की कोशिश करती है. देन व्हाट हैपेंस, क्या होता है? देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. अब जैसे हवा नीचे हो जाती है पतंग उसके ऊपर जाने लगती है. देन many of you must have observed students, then it seems to rest. वहां पे पहुंचने के बाद, सबसे टॉप पे पहुंचने के बाद, हवा के ऊपर पहुंचने के बाद काइट ऐसा मालूम पड़ता है मानो कि इट्स टेकिंग रेस्ट. वो क्या कर रही है? उस पे थोड़ा सा वो आराम करने लगती है. आपने भी देखा होगा एक हाइट पे पहुंचने के बाद काइट जो होती है, पतंग जो होती है, वो बिल्कुल रुक जाती है, स्टेशनरी हो जाती है. देयर इज नो मूवमेंट, वहां पे कोई मूवमेंट नहीं होता है. देन द सेम थिंग पोएट इज ट्राइंग टू से, वो उसी चीज को ऐसा कर रहा है कि मानो वो क्या कर रही हो? वो रेस्ट कर रही हो पतंग. एज विंड फॉल्स, जैसे वहां पे हवा थोड़ी सी क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, कम हो जाती है. व्हेन स्ट्रिंग गोज लाइक, स्ट्रिंग मींस स्टूडेंट्स यू नो डोरी, अ थिन लॉन्ग थिन स्टफ. स्ट्रिंग मींस डोरी. व्हेन द स्ट्रिंग गोज slack, slack स्टूडेंट्स मींस लूज, slack मींस लूज. जब स्ट्रिंग क्या हो जाती है? लूज हो जाती है. यू वाइंड इट बैक, आपने अगर पतंग उड़ाया है तो आपको मालूम होगा जैसे ही पतंग जब रुक जाती है हवा में तो उसकी जो स्ट्रिंग होती है वो थोड़ी सी क्या पड़ जाती है? मूवमेंट होगा नहीं, तो जो स्ट्रिंग है, जो डोरी है, वो क्या पड़ती है? ढीली पड़ जाती है. इट बिकम्स स्लैक. स्लैक मीन्स लूज. देन आप लोग क्या करते हो, या हम लोग क्या करते हैं? वी वाइंड इट बैक. वाइंड स्टूडेंट्स मीन्स रैप, लपेटना, रैप करना जल्दी से. तो रोल में हम लोग क्या करने लगते हैं? उसको रैप, वाइंड करने लगते हैं. वी वाइंड इट बैक. एंड रन अंटिल स्टूडेंट्स मीन्स अगेन वी ट्राई टू मेक द काइट फ्लाई इन द स्काई, और हमें तब तक उड़ाने की कोशिश करते हैं फिर दोबारा उसको, काइट को स्काई में. एंड न्यू ब्रीज ब्लो. एक बार जैसे हवा धीमी पड़ जाती है, हवा कम पड़ जाती है, जैसे हमने देखा, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे काइट क्या करने लगी हो? रेस्ट करने लगी हो. एट द सेम टाइम उसी समय जो काइट की जो डोर होती है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? ढीली पड़ जाती है, और हम उसे फिर क्या करने लगते हैं? दोबारा रैप करके वी ट्राई टू मेक इट टाइट अगेन. एंड वी रन अंटिल, जब तक हम उसको रैप करते हैं, अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, तब तक एक बिल्कुल नई हवा, फिर दोबारा तेज हवा क्या होने लगे? बहने लगे. एंड इट्स विंग्स फिल,
और जैसे ही हवा बहती है स्टूडेंट्स, जैसे पक्षियों को विंग होते हैं, पंख होते हैं, सो द author is trying to see four parts of the kites, it's just comparing with the wings. So लगता है कि मानो कि जो काइट का पंख है वो भी क्या होता है, हवा से भर जाता है जैसे ही हवा दोबारा बहने लगती है. देन एंड अप इट गोज अगेन, और दोबारा काइट क्या होती है, ऊपर की तरफ जाने लगती है. Now a poet is saying the same thing. How bright on the blue is a kite when it's new. Then as it reaches the in the sky as well, students, then same thing. Poet starts saying that when the kite looks very shiny when it reaches into the sky, and especially when it is the new. जब काइट नई हो और वो आकाश मुड़ रही हो तो बहुत कैसे दिखती है, बहुत ब्राइट, बहुत चमकीली दिखती है. Students, let me also again revise this poem. Those who couldn't join initially, listen again, and those who couldn't understand, I'm going to revise. You can also listen again, and so that you can understand more properly. We are studying the poem Kite, students. So let's start again. How bright on the blue? On the blue, I have already told. On the blue refers to the sky. Is a kite when it's new. The poet is trying to say when kite is new and it's flying in the sky, it's look quite bright. ये बहुत कैसा दिखती है, किसे दिखती है, चमकीली दिखती है. It snaps. Snaps means students make a sharp sound, तेज आवाज करना. It snap its tail. Oh, beg your pardon. With dive and deep. Dive and deep, students, means comes downward, नीचे की तरफ आना. जैसे ही पतंग when initially starts to fly, जैसे हम शुरू में से उड़ाने की कोशिश करते हैं, so it comes again downwards, वो नीचे की तरफ आती है, मानो कि गोता लगा रही है. So with a dive and deep, it snaps its tail. जैसे नीचे की तरफ आती है तो मानो उसके स्नैप से जो एक होता है एक शार्प साउंड आता है. Then तब जाकर it soars like a ship. कई बार नीचे आने के बाद when it starts flying, जब वो उड़ना शुरू करती है, then it soars means fly. It's fly like a ship with only a sail. Sail means students a sheet of cloth. जैसे कपड़े के सहारे एक नाव जो है समुद्र में आगे बढ़ती है हवा जब बहने लगती है. सिमिलरली उसी तरह से पतंग भी जो होती है क्या होती है, हवा में उड़ने लगती है. As over tides. Tides means students the wave of tides of wave. Tides of wind. जैसे ही हवा की लहरें के ऊपर पतंग क्या होती है, पहुंच जाती है. It rides. Rides means reach, students. As over tides of wind, it rides. जब पतंग है जैसे ही हवा की लहरों के ऊपर पहुंच जाती है, climbs to the crest of a gust and pulls. और हवा की लहरों के ऊपर जाने के बाद it climbs to the crest. Crest means students the top of something. एक सबसे ऊपरी हिस्सा किसी भी चीज का. जब वो कहां पहुंच जाती है, हवा के बिल्कुल ऊपर पहुंच जाती है. गस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड. जो हवा का तेज झोंका होता है उसको बिल्कुल कहां पहुंच जाती है स्टूडेंट्स, पतंग ऊपर पहुंच जाती है. एंड पुल्स मीन्स ट्राई टू गो मोर, ट्राई टू राइज मोर एव, और उससे ऊपर और जाने की कोशिश करती है. देन सीम्स टू रेस्ट. उस पोजीशन पे जाकर काइट ऐसा मालूम पड़ता है स्टूडेंट्स, काइट क्या कर रही है, देन सीम्स टू रेस्ट, मानो कि वो क्या कर रही है, अब आराम कर रही है. एज विंड फॉल्स. जैसे वहां पे हवा थोड़ी सी अब क्या होने लगती है, कम होने लगती है. इट बिकम्स स्टेशनरी. When string goes slack, students, that time due to the due to being in stationary position, when the string goes slack, जब जो डोरी होती है पतंग की क्या होती है, slack means students become loose, ढीली पड़ जाती है. You wind it back, तो हम उसको तेजी से रैप करके रोल में क्या करते हैं उसको, we make it tight again or try to make it tight again. And run until means students we just try to make it tight until a new breeze blow. जब तक कि दोबारा तेज हवा नहीं बहने लगती है उसको हम बार बार उस डोरी को क्या करते हैं, ढील देते हैं या खींचते रहते हैं. And its wings fill. जब एक बार दोबारा उस पंख का जो विंग्स होता है, काइट का जो विंग्स होती है, विंग्स की तरह तुलना की गई है स्टूडेंट्स, वो दोबारा जैसे मानो उसमें क्या हो जाए, हवा भर जाए. And up it goes. दोबारा वो क्या होने लगती है, इट स्टार्ट्स गोइंग अपवर्ड्स इन द स्काई. अगेन द पोएट रिपीटिंग द टू लाइन्स ऑफ द दिस पोएम. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू.
द सेम थिंग पोएट इज सेइंग स्टूडेंट्स, कितनी जो काइट है वो कितनी चमकीली है, हाउ ब्राइट इट इज व्हेन इट इज द इन द स्काई फ्लाइंग, and especially when the kite is the new. So these were the still we have 4 lines to study students, so let us see also those 4 lines. वो 4 लाइन को भी हम देख लेते हैं क्या है. But a raggeder thing, but a, you can see in your book, but a raggeder thing you never see, you never will see, you will never see when it flaps, when it flaps on a string, on a string in the top of tree. So also let's see these lines students, last 4 lines. Now in these lines, but a raggeder means students, raggeder means a thing which is very old, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत क्या हो, पुरानी हो, एंड स्टोन फटी हो, पुरानी हो, एंड इट्स ऑल्सो अनटाइडी, जो गंदी भी हो. सो बट ए रैगडर थिंग, जैसे उस चीज को हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, नहीं देखना चाहते हैं. यू नेवर विल सी, सिमिलरली द पोएट इज सेइंग, आप उसी की तरह नहीं देख पाओगे या उसको नहीं देखना चाहते हो क्या, when it's flaps on a string in the top of tree. Students, you know, after during the when we fly a kite, sometimes when it get entangled, काइट कभी कभी इंटेंगल हो जाती है, फंस जाती है पेड़ों में या तारों में, आपने देखा होगा, इट गेट्स इंटेंगल्ड, वहां पे फंस जाती है. सो सेम थिंग द पोएट इज टेलिंग स्टूडेंट्स, जैसे फंसने के बाद वो फट जाती है, टूट जाती है. बट ए रैगडर थिंग यू नेवर विल सी, जैसे एक बार पतंग फंस जाती है कहीं तो उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं. तो सेम थिंग द पोएट इज सेइंग स्टूडेंट्स, सिमिलरली जब क्या होती है, काइट जब कहीं पेड़ों में फंस जाती है, व्हेन इट फ्लैप्स, सो आप देखोगे कि जब भी हवा बहेगी, जैसे जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, अपना पंख जो फ्लैप करते हैं, फ्लैप मीन्स टू फ्लटर, पंख ऊपर नीचे करना. सो जैसे पक्षी उड़ने की कोशिश करते हैं, फ्लैटर करते हैं, फ्लैप्स करते हैं पंखों को अपने, सिमिलरली जो काइट होती है स्टूडेंट्स, वो ऐसा मानो कि कोशिश करती है उड़ने की. सपोज दैट एक जो काइट है वो किसी ब्रांच में, किसी ट्री के ऊपर फंस गई है, सो हवा बहती है तो ऐसा मालूम होता है कि वो एक पंख अपना उड़ाकर, या पंख जैसे पक्षी फ्लैप करके उड़ने की कोशिश करते हैं, वैसे ही काइट भी उड़ने की कोशिश करती है. But that thing we cannot observe students, because once it get entangled in wires or branches of tree, we do not try to notice it, हम उसे देखने की कोशिश नहीं करते हैं. Same thing poet is saying students, but a raggeder thing, वो चीज जो गंदी और टूट जाती है, फटी हुई होती है, उसी की तरह से जब एक पतंग होती है जो फंस जाती है, इंटेंगल हो जाती है ट्री के ऊपर, सो वो उड़ने की तो कोशिश करती है, उसके साथ डोर भी होती है, उड़ाने वाला नहीं होता, तो अपने भी हवा के साथ उड़ने की कोशिश करती है. बट दैट मूवमेंट आर दैट ऑल एक्टिविटी वी डू नॉट सी स्टूडेंट्स, हम उसको क्या करते हैं, देखते नहीं है, या हम नहीं देख पाएंगे या देख पाते हैं. सो दिस वाज योर पोएम स्टूडेंट्स, द काइट. आई होप आपको समझ में आया होगा. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन.